Hey guys, in this lecture, I'm again going to discuss about enthalpy change. But this time, the enthalpy change is associated with physical transformation. You just need to be familiar with few terms involved with respect to enthalpy change, their sign and denotion in physical process. अब physical process क्या हो सकते हैं? Physical process can be phase transition. सॉलिड लिक्विड गैस, गैस लिक्विड सॉलिड, मतलब इट कैन बी फ्यूजन जिसको हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं, और इट कैन बी वेपराइजेशन और कंडेंसेशन, ठीक है, सब्लिमेशन, ये सब फेस ट्रांजिशन. सो इस फेस ट्रांजिशन में जो हीट इन्वॉल्व होगी दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फेस ट्रांजिशन, और ये एक फिजिकल प्रोसेस है, स्टेट चेंज हो रहा है. या तो हम लोग पढ़ सकते हैं एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन केस ऑफ एटम्स, लाइक आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जहां पर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, विच यू हैव डन इन योर 11th स्टैंडर्ड. तो मैं सिर्फ इसका डिनोशन दे दूंगा, ये आप लोगों को पता है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हीट ऑफ एटमाइजेशन, वेयर यू ब्रेक अ डायटोमिक मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू एन एटम, जिसको अब हम लोग ने बॉन्ड एंथैल्पी में भी डिस्कस किया था. एंड द थर्ड फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन. एंड इफ यू रिमेंबर, अ सॉल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट चेंज होता है उसके अंदर, या तो आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो पानी डाल के तो भी हीट चेंज होता है, तो उसको भी हम लोग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में डालते हैं. So enthalpies of physical transformation can be enthalpies of phase transition, can be enthalpy with respect to atom, can be enthalpy with respect to solutions. ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके टर्म्स आप लोग बराबर देख लेना. Okay guys, so we'll start a lecture like this. So enthalpy of phase transition or physical transformation. So physical transformation, we are going to study enthalpy change, the change in enthalpy in case of phase transition, जैसा मैंने आपको बताया, phase change, solid liquid gas, gas liquid solid. Or we are going to study this delta H in case of atom and molecular changes, atom or molecular changes. And we are going to study the enthalpy change in another physical transformation, that is solution or dilution and dilution. So ये सब के अंदर तो एंथैल्पी चेंज होती है, इन सब को हम लोग एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. एकदम सिंपल वे है समझने के लिए. So first thing I'm going to discuss today, the first part in this lecture is phase transition. Okay, I'll clear this up. So let's talk about the first part, that is enthalpy of phase transition. Okay, enthalpy of phase transition. So phase transition में सबसे पहले the first thing is delta fuse H. Remember, it is called as enthalpy of fusion. Okay, fusion process में जो enthalpy change होती है, और fusion क्या होगा, solid से liquid, जिसको आप melting भी बोलते हो simple point में. अच्छा, हर phase transition का जो calculate होगा, it is for 1 mole. Okay, तो याद रखना, solid to liquid, this is enthalpy of fusion. Example, suppose we take H2O in solid state, that is your ice. At 0 degrees Celsius, it will fuse, it will melt to form a liquid. So यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा delta fusion H is plus 6.01 kilojoules per mole at 0 degrees Celsius. मतलब 0 degree Celsius पे 18 gram of ice, that is 1 mole of ice, requires 6.10 kilojoules of heat to melt or to fuse. So याद रखना, मेल्टिंग के लिए हम लोग फ्यूजन यूज करते हैं. Now then we have इसका रिवर्स, that is enthalpy of freezing. तो इसको लिखेंगे enthalpy of freeze H. So it is the enthalpy change when 1 mole of a substance freeze at constant temperature and pressure. Obviously enthalpy change constant temperature और pressure पे ही पढ़ा जाता है. So here this is for freezing process, that is from liquid to what, solid, freezing process. एग्जाम्पल, अगर यही सेम रिएक्शन में रिवर्स लिख दूं, so H2O liquid 1 mole if I take, convert into H2O solid,
तो डेल्टा फ्रीज एच विल बी इक्वल टू -6.01 किलो जूल्स पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब योर -6.01 मतलब 6.01 kilojoules of heat is evolved when 18 gram of liquid is converted into an ice। तो ये फ्रीज हो गया। Now थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है delta vap H, or this is called as enthalpy of vaporization, where the liquid is converted into a gaseous state. Okay, example, suppose if I take an example of H2O, 1 mole of H2O into liquid converting into H2O 1 mole into gaseous state। तो अब वेपराइजेशन 0 डिग्री पे भी होता है, वेपराइजेशन 25 डिग्री पे भी होगा, वेपराइजेशन 100 डिग्री पे भी होगा। मतलब वेपराइजेशन इज अ नॉर्मल फिनोमेना वेयर द वाटर इवेपोरेट्स इवन एट द रूम टेम्परेचर। लोअर देन रूम, हायर देन रूम, वाटर तो इवेपोरेट होता ही है। तो इसके लिए मैं इसका वेपराइजेशन सपोज ये वैल्यू लिख रहा हूं, डेल्टा वेप एच ऑफ वाटर is plus 40.7 kilojoules per mole। तो दिस वैल्यू इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री पे जब पानी होगा तो वो इतना हीट लेगा, 1 मोल ऑफ वाटर दैट इज 18 ग्राम टू वेपराइज। और अगर वही डेल्टा वेपेच में कैलकुलेट करता हूँ रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, so it is plus 44 kilojoules per mole at 25 डिग्री सेल्सियस। और मैं अगर इसमें 0 पे चले जाऊंगा तो प्लस 45 हो जाएगा और कम हो जाएगा। So if I go at delta VPH, it is plus 45.07 kilojoules per mole। ये कब होगा 0 डिग्री, मतलब हर एक टेम्परेचर पे वाटर इवेपोरेट हो सकता है, तो वैल्यूज विल बी डिफरेंट। जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा हीट कंटेंट होगा सिस्टम का, एंड ऑब्वियसली हीट एब्जॉर्ब होगा। इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि वाटर को आपको इवेपोरेट करना है। ना फोर्थ फिजिकल चेंज, अगर लिक्विड से गैस हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। दैट इज गिवन एज डेल्टा कंडेंसेशन एच। तो कंडेंसेशन क्या होता है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, कंडेंसेशन प्रोसेस। मतलब अगर मैं ये रिएक्शन रिवर्स लिख दूं कि H2O गैस है, 1 मोल कन्वर्ट्स इनटू H2O लिक्विड, तो अब मैं कंडेंसेशन का वैल्यू इनमें से कुछ भी लिख सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर 25, 100 और 0 डिग्री, बट द मैग्नीट्यूड विल बी डिफरेंट बिकॉज कंडेंसेशन में जब वो गैस से लिक्विड होगा देन हीट विल बी रिलीज। तो समझो मैंने बात किया 100 डिग्री पे, तो 100 डिग्री पे डेल्टा कंडेंसेशन H विल बी इक्वल टू -40.7 किलो जूल्स पर मोल एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर वही 25 पे होता तो -44 होता, 0 पे होता तो -45 होता। तो कंडेंसेशन में भी हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ओके, देन एंथैल्पी ऑफ फिजिकल में फिफ्थ इज डेल्टा सब एच। ये आपको समझ में आ जाएगा। सब मीन सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस मतलब डायरेक्टली वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, so for example, if I take H2O ice solid state, it is converting into an H2O gas। so now your delta sub H will be equal to what, will be equal to 51.08 plus 51.08 kilojoules per mole at suppose 0 डिग्री सेल्सियस। तो इतने हीट चाहिए 0 डिग्री पे उसको पूरा सॉलिड से किस में होने के लिए, गैस में होने के लिए। एंड गाइस, सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस है, तो आपको एक बात समझना जरूरी है कि सब्लिमेशन इज बेसिकली द सम ऑफ, सब्लिमेशन इज बेसिकली द सम ऑफ डेल्टा फ्यूज एच प्लस डेल्टा वेप एच। मतलब आप सॉलिड से लिक्विड में जाओगे, फिर लिक्विड से गैस में जाओगे, तो वही सब्लिमेशन का हीट होता है। मतलब फ्यूज एच, आप बराबर देखो फ्यूज एच का वैल्यू कितना है, +6.01 किलो जूल्स एट 0 डिग्री। फिर अगर मैं बात करूंगा वेप एच की, तो वेप एच की 0 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू कितनी होती है, 45.07। तो आप बराबर देखो कि ये वैल्यू जो है 51.8, ये 45.07 प्लस 6.01 को ऐड करोगे तो 45 प्लस 6 कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा, 51। तो 51.08 का वैल्यू आ रहा है जब ये दोनों को ऐड किया जाए। नो दिस वैल्यू 45.07 इज डेल्टा व्हाट, वेपेच, एंड दिस इज व्हाट डेल्टा, अभी हम लोग ने देखा सी, डेल्टा
फ्यूज एच। तो डेल्टा फ्यूजन और वेपराइजेशन को जब आप ऐड करोगे, सो बेसिकली दे विल गिव यू एट डेल्टा फ्यूज एच एंड वेपराइजेशन, दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू ऑफ 51.08. So guys, you need to remember this कि sublimation is basically sum of fusion and vaporization at the same temperature. आपने temperature same select किया और दोनों के values add करोगे तो sublimation का value मिल जाएगा. Okay, so this was the enthalpy of phase transition. इसमें सारे values हमको याद करने पड़ेंगे, मतलब all these denotions you need to remember कि how they have been represented and how in a particular reaction where they are endothermic and when they are exothermic in nature. Okay, simple चीज है. Now second मैं जा रहा हूँ after phase transition. I'll clear this up. Second I'll move to the enthalpy of जो आप लोगों ने 11th standard में किया, enthalpy of atomic or molecular change. So B part will be enthalpy of atomic or molecular change. Now atomic और molecular change की बात करूंगा तो this you have done in your 11th standard, जिसमें आपने ये देखा होगा delta INH, that is called as what? Enthalpy of ionization. Enthalpy of ionization. Okay, I won't write much about this. This you have done in your 11th standard, guys. Now what is enthalpy of ionization? So इसका definition क्या था? It is the amount of energy absorbed, तो ये endothermic है, to remove loosely bonded outermost electron from the outer shell of an atom. कौन सा एटम होना चाहिए? Isolated gaseous atom. So simple क्या है? You take isolated, think about it, isolated gaseous atom is taken, heat is supplied to an atom, electron is removed. When the electron is removed from an atom, the atom will convert into an cation. Cation is an ion. So that type of enthalpy is called as ionization enthalpy, which is always endothermic in nature. Okay, और ये आप लोगों ने कर चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सोडियम लिया है, सोडियम इज 2,8,1, I have to remove this loosely bonded outermost electron. तो मैं यहाँ पर heat supply करूंगा, इसको heat supply करूंगा तो after supplying heat it will convert into what? Na plus, and it will release an electron. तो ये cation यानी ion बन गया है, release an electron. Electron आपने निकाल दिया. When we calculate delta INH for this example, it comes to 494 यानी plus 494 kilojoules per mole. So for 1 mole मतलब 23 gram of sodium में से ये सारे electrons outermost shell में से निकालने हैं, तो this much heat should be absorbed by the atom. So delta INH is always positive. ये हम लोग ने कर चुके. In periodic table का chapter था classification of elements, we have done this physical properties. I'm just revising it. Delta, फिर second आपने देखा होगा delta EGH, that is electron gain enthalpy, which is exo in nature. Obviously जब electron निकालोगे तो endo होगा, electron add होगा, exo होगा. तो इसको डिफाइन कैसा करेंगे? इट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when an electron is added into an isolated gaseous atom. Okay, except for noble gas. noble gas के अंदर एक्स्ट्रा शेल नहीं होते, तो वहां पर आयोनाइज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, एक्सेप्ट फॉर नोबल गैस. रिमेंबर दैट, बिकॉज नोबल गैस के अंदर देयर इज नो एक्स्ट्रा शेल. ये भी आपने पढ़ा है क्लासिफिकेशन, देयर इज नो एक्स्ट्रा शेल. So a electron, when it is added to a noble gas, the electron has to create its own shell, so you have to spend energy. So only in case of noble gas, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, which have a stable configuration, you need to add electrons. So over there the electron gain enthalpy become positive, rest everywhere is negative. And anomalous behavior आपको दिखता है ग्रुप 16, ग्रुप 17 इसके अंदर दिखता है. ग्रुप 16 फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, स्मॉलर साइज है. So when electron try to enter into an oxygen, due to the inner electron of oxygen repelling it, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसके नीचे वाले एलिमेंट सल्फर से कम हो जाता है. सिमिलरली फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम हो जाता है, बिकॉज द इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन रिपेल्स द आउटकमिंग इंटरिंग the free electron which is coming inside an atom. So that's the reason वहां पर anomalous है, which you have done in your classification of elements के sulfur is suddenly greater than oxygen, then बाद में पूरा normal order follow होता है, and chlorine is little bit greater than fluorine, then normal order वापस के. As you go down the group, electron gain enthalpy decreases.
okay, so it's negative in nature, but ये हमेशा अच्छा. Now for example मैंने क्लोरीन लिया है in the gaseous state, isolated gaseous atom, you add an electron, it will form a Cl minus in gaseous state. And here if I can write down the delta H, so delta EGH for this is minus 349 kilojoules per mole. You have to remember that electron gain enthalpy for noble gas, helium, neon, argon, krypton, xenon is positive. And if you talk about electron gain enthalpy of group 16, तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए था, बट सल्फर ज्यादा निकल गया ऑक्सीजन, देन वही सेल्यूनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. सिमिलरली ग्रुप 17 के अंदर एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, दैट क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, देन यू हैव ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. पोलोनियम तो वैसे भी हम लोग डिस्कस नहीं करते, रेडियो एक्टिव मटीरियल, but you have to remember this exception cases, group 15, group 16, group 17 के exception cases. Okay, why? क्यों ज्यादा हो जाता है अचानक से? because of inter-electronic repulsions. And guys, इसमें एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया. If you remove 2 electrons, then you have 2 values of ionization enthalpy. If you remove 3 electrons, you have 3 values of ionization enthalpy. Suppose मैंने magnesium लिया है, magnesium is 2,8,2. So if I remove 1 electron from magnesium, I get magnesium plus, जिसमें जो value होगा वो delta INH1 हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद Mg plus जो 2,8,1 था, 2,8,1 उसका ये एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, तो ये बन जाएगा Mg2 plus more stable state 2,8 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ जो एनर्जी यूज होगी डेल्टा INH2 होगी. तो रिमेंबर ionization, second ionization enthalpy will always greater than the first ionization enthalpy of an element. Why? उसका रीजन क्या है? बिकॉज जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, प्रोटॉन डोमिनेंट पे आ जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं, एटम और स्क्वीज हो जाता है. तो जो आपने ये समझो, आपने ये 2 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल दिया. ओके, अब ये मैग्नीशियम प्लस का जो साइज बनेगा, that is lesser than the magnesium, and the protonic charges are more dominant. So that is why to remove this electron becomes very difficult, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन और क्लोज चला गया न्यूक्लियस के और स्ट्रांगली बॉन्ड हो गया न्यूक्लियस के, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी. 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, निकाल लो. तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट. ओके, और इसमें एक पॉइंट है, ये तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया. द थर्ड एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज इज डेल्टा एटमाइजेशन H. ये मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लेके उसको ब्रेक करोगे तो वो एटम में कन्वर्ट होगा. ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक लिया तो एवरेज लिखते हैं, सारे बॉन्ड्स को डिवाइड बाय 2 करते हैं. ये हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं इन बॉन्ड एनर्जी इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही, कि व्हाट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड ऑफ 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू इट्स एटम. तो दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ एटमाइजेशन. अब एक बॉन्ड ब्रेक करोगे, हीट ऑफ एटमाइजेशन है. अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लिया, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स लिया, तो उसका एवरेज निकाल के रखना पड़ेगा, लाइक इन केस ऑफ वाटर आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस लेक्चर. ओके, सो दिस इज द एंथैल्पी एसोसिएटेड विद द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज. अभी हम लोग जाते हैं सीधा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस पे, तो ध्यान देना इस पे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. enthalpy change, enthalpy of solution. Solution is delta solution H. तो डेल्टा SOLH भी कभी मेंशन किया तो इट इज नथिंग बट द हीट ऑफ सॉल्यूशन. इट्स वन एंड द सेम थिंग. ओके, या कोई कोई जगह पे पूरा सॉल्यूशन ही लिख के आ जाएगा, सो दैट इज आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो अल्टीमेटली they have given us the heat of solution only. So heat of solution, अब ये जो प्रोसेस होता है where the solutions are being made, so we know that a solution is a combination of solute plus solvent. तो they are the combination of solute plus solvent, मतलब जब आप solute और solvent को dissolve करते हो तो वो solution बनता है. तो heat of solutions के बारे में हम लोग बात करते हैं. ठीक है, सो सब 1 मोल का ही कॉन्सेप्ट है. तो इट्स एंथैल्पी चेंज, याद रखना, इट्स एंथैल्पी चेंज. लिसन टू मी, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट. ओके, एंथैल्पी चेंज, दैट इज डेल्टा H. एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, dissolved in
given quantity of solvent. Now everyone is familiar with solution and colligative के what is solvent, solute and all. ठीक है, to form a solution at particular temperature. तो obviously temperature तो constant रहना ही चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने NaCl लिया है, NaCl सॉलिड है, 1 मोल को मैंने वाटर में ऐड कर दिया, वाटर में ऐड करने के बाद मैंने NaCl सोल्यूशन बना लिया 1 मोलार का, तो यहाँ पर डेल्टा सोल्यूशन हो जाएगा, डेल्टा सोल्यूशन H मतलब हीट ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू +4 किलो जूल्स पर मोल. तो मतलब 1 मोल ऑफ NaCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करके 1 मोलार सोल्यूशन बनाते हो तो इतना हीट एब्जॉर्ब हो जाता है. सिमिलरली जब आप KCl को डाल के बनाओगे, सपोज यू टेक KCl solid 1 mole, you add in water to form 1 molar solution, तो KCl वाटर में जाने के बाद aqueous मीडियम में K+Cl- बनाएगा, so your heat of solution is plus 17.2 kilojoules per mole. So this is nothing but the heat of solution. Solution बनता है, but solution कैसे बनता है याद रखना चाहिए कि heat of solution जो heat liberate हो रही है, a solution depends on what? Depends on solvent solvent interaction. कोई भी solution किस पे डिपेंड करता है? solvent solvent interaction, plus it depends upon solute solute interaction, and it depends upon solute solvent interaction. Okay, now do you remember कि solute particles अगर वो solid में है, हम लोगों ने solute particles अगर solid में लिया तो solute particles are held together in a crystalline substance by strong intermolecular force of attraction, and energy required to overcome this attractive force to dissolve the solute. For this ionic energy it is called as lattice energy. मतलब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आप सोल्यूशन बना रहे हो, फॉर एग्जांपल सॉलिड आपने लिया, आपका सल्यूट सॉलिड सल्यूट लिया है, उसको आपने वाटर में डाला, तो 3 चीजें वहां पर होती है. पहली बात, सॉलिड में जो सल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होंगे, और अगर वो आयनिक सॉलिड है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगी जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. तो पहले ये सल्यूट को, इनका इंटरैक्शन क्या है, इनको सेपरेट होना बहुत जरूरी है. दूसरी बात, सॉल्वेंट सॉल्वेंट आपस में इंटरैक्ट कैसा कर रहे हैं, सपोज वाटर लिया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो उसका एक इफेक्ट होता है. फिर जब आप इस सॉलिड सल्यूट को पानी में डालते हो या कोई भी सॉल्वेंट में डालते हो तो सॉल्वेंट सल्यूट से इंटरैक्ट करता है. ठीक है, जब सॉल्वेंट जब सल्यूट से इंटरैक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन. और आपका अगर सॉल्वेंट पानी है तो उसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं. ठीक है, तो वन इज सॉल्वेंट सॉल्वेंट मतलब whenever you add a solute to a solvent there will be 3 kinds of interactions. वो इंटरैक्शन ओवरकम होके सोल्यूशन बनता है. पहला है इंटरैक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट का, दूसरा है सल्यूट सॉल्वेंट का, सल्यूट सल्यूट का, और तीसरा है सल्यूट सॉल्वेंट का. अच्छा, सल्यूट सल्यूट में जो इंटरैक्शन होता है दैट इज नथिंग बट द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वो कोवेलेंट फोर्स हो सकते हैं, वो आयोनिक फोर्स हो सकते हैं, कोई भी फोर्स हो सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, अब समझो वो आयनिक सॉलिड है, सपोज वो आयनिक सॉलिड, आपने NaCl पानी में डाला, KCl पानी में डाला, ये सब आयनिक कंपाउंड्स है. तो आयनिक सॉलिड्स में जो इंटरैक्शन होता है वो इंटरैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होता है, और आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, और हर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एक एनर्जी होता है ब्रेक करने का, दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी. मैंने बताया था एवरी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट, every crystalline substance has a lattice structure, so that lattice energy is present in them. तो सल्यूट सल्यूट इंटरैक्शन अगर मैं बात करूं, और वो अगर खास करके आयोनिक और यू कैन से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, तो उनके बीच में जो इंटरैक्शन होगा वो लैटिस इंटरैक्शन है, दैट इज डिनोटेड बाय लैटिस एनर्जी डेल्टा LH. तो लैटिस एनर्जी इन्वॉल्व होती है. अगर लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है तो सल्यूट्स जो आयनिक सॉलिड्स है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, उनके बीच के पार्टिकल्स के इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होंगे, वो पानी में जल्दी ब्रेक नहीं होंगे, तो हम उनको स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स बोलते हैं, AgCl, जो हम लोग ने आयनिक में किया था. लेकिन अगर सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन इतने स्ट्रांग नहीं है, वाटर में जाने के बाद ब्रेक हो सकते हैं, तो लैटिस एनर्जी कम होगी. लैटिस एनर्जी कम होगी तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, लाइक NaCl KCl कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर. तो लैटिस एनर्जी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड विल टॉक अबाउट लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी एक्चुअली उसको रिप्रेजेंट कैसा करते हैं.
अच्छा, सल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, सॉल्वेशन। और उसको हम, अगर सॉल्वेंट आपने वाटर लिया है तो वाटर के केस में उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। मतलब सल्यूट को आपने पानी में डाला तो पानी के साथ या सॉल्वेंट के साथ वो इंटरैक्ट करके बैठ जाना चाहिए। अगर वो इंटरैक्ट नहीं करेगा तो मिक्स कैसा होगा, सोल्यूशन कैसा बनेगा, होमोजेनस मिक्सचर कैसा बनेगा, वरना वो हेट्रोजेनस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द हीट ऑफ सोल्यूशन। मतलब इनडायरेक्टली the heat of solution is depending upon the lattice enthalpy n delta HYDH hydration energy। अगर पानी लिया तो, या तो फिर हम लोग उसको सॉल्वेशन एनर्जी भी बोलते हैं। तो हम लोग हाइड्रेशन पकड़ के चलते हैं। अगर हम लोग पानी लिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि सोल्यूशन डेल्टा सोल्यूशन एस इज इक्वल टू डेल्टा LH फॉर एन आयनिक सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड प्लस डेल्टा HYDH हाइड्रेशन। कितने अच्छे तरीके से वो हाइड्रेट हो रहा है। अगर ज्यादा हाइड्रेट होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, बिकॉज हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन में सॉल्वेंट सल्यूट के साथ बॉन्ड बनाता है, एंड व्हेनेवर बॉन्ड इज फॉर्म एनर्जी इज रिलीज। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी मतलब उतना अच्छा बॉन्ड बना है किसका, सल्यूट और सॉल्वेंट का, इसके लिए वो उतना स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बना है। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ I'll talk about lattice enthalpy, I'll talk about hydration enthalpy और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। बट ये आपको समझ में आना चाहिए कि सोल्यूशन बनाने के लिए 3 इंटरैक्शन जरूरी है। सल्यूट सल्यूट इंटरैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा LH लैटिस एंथैल्पी, अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लाइक आयनिक सल्यूट्स की बात कर रहे हैं। और दूसरा है सल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी, जिसको हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी भी बोलते हैं, अगर आपने अपना सॉल्वेंट पानी लिया है तो। और जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतना ज्यादा वाटर और सल्यूट का इंटरैक्शन होगा, उतना स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनेगा और उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ओके, आई विल मूव अहेड and I'll write down your about delta LH. What is delta LH? Delta LH is called as lattice energy और क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, क्योंकि हम लोग यहाँ क्रिस्टलाइन कंपाउंड की बात कर रहे हैं। एनर्जी डेल्टा LH, इसको डिफाइन कैसा करेंगे, देखो इसका डिफाइन हो जाएगा, इट इज एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H स्टैंड फॉर एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन और डिसोसिएशन या ब्रेकिंग बोल सकते हो ऑफ 1 मोल of crystalline solid from its constituent ions in gaseous state। मतलब अगर मुझे कोई पूछ रहा है कि सर लैटिस एंथैल्पी का NaCl फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखो, मतलब अगर NaCl इज आयनिक कंपाउंड, ठीक है, अगर मुझे उसका लैटिस रिएक्शन लिखना है तो लैटिस रिएक्शन में NaCl के आयंस लगेंगे गैसियस स्टेट में, वो भी 1 मोल। मतलब अगर मैंने ले लिया है Na प्लस आयंस इन गैसियस स्टेट कंबाइनिंग विद Cl माइनस आयंस इन गैसियस स्टेट, इट विल गिव यू NaCl इन सॉलिड स्टेट। मिल गया। अब ये जो वैल्यू होगा दैट विल बी लैटिस एंथैल्पी, और ये लैटिस एंथैल्पी आ रहा है -790 किलो जूल्स। मतलब ये 1 मोल ऑफ NaCl का लैटिस बनके तैयार है। और जब ये तैयार हो जाएगा कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, -790, और इतनी ही एनर्जी लगेगी इस NaCl को ब्रेक करने के लिए 1 मोल में इनटू इट्स गैसियस आयंस। अच्छा रिमेंबर, ये जो रिएक्शन लिखा ये लैटिस फॉर्मेशन रिएक्शन है, मतलब ये लैटिस का रिएक्शन होता है। अगर कोई रिएक्शन ऐसा लिख रहा है, सोडियम सॉलिड प्लस हाफ क्लोरीन गैस गिव्स यू NaCl सॉलिड, वो बोलेगा सर इसमें भी तो NaCl बन रहा है। मैंने बोला हाँ इसमें NaCl बन रहा है, और इसमें जो NaCl बन रहा है इट इज मेड फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट। तो इसको हम लोग लैटिस रिएक्शन नहीं, इसको हम लोग इफ यू रिमेंबर फॉर्मेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो लैटिस रिएक्शन और फॉर्मेशन रिएक्शन दोनों सेम नहीं होते हैं। लैटिस रिएक्शन में आपको आयंस को गैसियस स्टेट में कंबाइन करना है, और फॉर्मेशन रिएक्शन में आपको
एलिमेंट्स लेने हैं उनके स्टैंडर्ड स्टेट में। सोडियम का स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंटल स्टेट सॉलिड है, क्लोरीन का गैस है, और फिर कंपाउंड बनाना है। तो इसमें जो हीट इन्वॉल्व होगी वो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। इसमें जो हीट इन्वॉल्व हो रही है वो लैटिस एंथैल्पी है। ओके, तो पहले ये समझ जाओ कि लैटिस एंथैल्पी में रिएक्शन कैसा लिखते हैं। आयंस होना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए, और आयंस गैस में होना चाहिए। ओके, सो दिस इज योर सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन का लैटिस एंथैल्पी। नाउ उसके बाद में नेक्स्ट इंटरेक्शन मैंने आपको बताया था सॉल्वेंट सॉल्वेंट, तो वो तो बहुत सिंपल है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाना चाहिए, बिकॉज जब वो ब्रेक हो गए तो ही जाके सल्यूट अपनी अंदर जगह बना सकता है। तो वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट हो गया इंटरेक्शन, लाइक पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एंड थर्ड टाइप का इंटरेक्शन, आई विल क्लियर दिस अप, द थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और मैंने आपको बताया है कि सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में जो हीट रिलीज होती है, क्योंकि सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जैसे NaCl को आप पानी में डालोगे तो Na+ विल बी सराउंडेड बाय H2O with the oxygen end, and Cl- will be surrounded by H2O with the hydrogen end, because hydrogen is positive end, और वो उनको ब्रेक कर देंगे। तो दैट इज हाइड्रेशन। मतलब एक आयन अपने सॉल्वेंट से पूरा सराउंड हो गया है, जैसे Na+ है तो वो पूरा H2O इज अ वी शेप, जिसपे O पे डेल्टा माइनस होता है, इस पे डेल्टा प्लस। तो देखो ये वी शेप का ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है नेगेटिव है, ये देखो इसको सराउंड कर लेंगे, these are नेगेटिव एंड्स, ये सराउंड कर लेंगे, सराउंड हो गए। अब यहाँ भी दूसरे ऑक्सीजन आ जाएंगे, क्योंकि पीछे प्लस चार्ज है हाइड्रोजन के। सी, so there are so many H2O molecule which are surrounding this, तो एक ऐसा स्पीयर बन जाएगा और बीच में Na+ बैठ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। और जितना अच्छा हाइड्रेशन, मतलब उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग दैट पर्टिकुलर आयन, एंड दैट मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। तो हाइड्रेशन एनर्जी जितना रिलीज होता है उतना स्टेबल सोल्यूशन बनता है, ये याद रखने का। ओके, सो हाइड्रेशन इज नथिंग बट द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट interaction. Okay, the energy is released is called as enthalpy of hydration. अगर आपने वाटर यूज किया है, मतलब अगर मैं सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। रिमेंबर दिस, ओके, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इन हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन is defined as the enthalpy change ठीक है, involved in hydration of 1 mole of gaseous ion. फॉर एग्जाम्पल आपने गैशियस आयन ले लिया है Na+ गैशियस स्टेट में, ठीक है। अब उसको ऑब्वियस बात है, जब वो हाइड्रेट होगा वाटर से तो वो कंप्लीट हाइड्रेशन में जाएगा। तो समझो Na+ हाइड्रेशन में जा रहा है वाटर के साथ में, आपने और Cl- भी आपने लिया है गैशियस स्टेट में, आप उसको वाटर में ऐड कर रहे हो तो हाइड्रेशन हो जाएगा। सो अब यहाँ पर बनेगा NaCl Na+ in aqueous state and Cl- in aqueous state. Now this time if you calculate the hydration energy for Na+ gas and Cl- gas in water, it comes around around 78.6 kilojoules. It's around -786 kilojoules per mole. मतलब जब NaCl को हाइड्रेट करते हैं तो इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, और जब NaCl का लैटिस फॉर्म होता है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको ये लिखाया था कि डेल्टा सोल्यूशन H, समझो NaCl का सोल्यूशन बनाना है, इज इक्वल टू डेल्टा LH प्लस डेल्टा HYD। वाटर लिया है तो हाइड्रेशन H, ठीक है, वरना हम लोग सॉल्वेशन यूज करते हैं कोई और सॉल्वेंट लिया तो। बट नॉर्मली पोलर मीडिया में वी टेक वाटर, ज्यादा बेस्ट सॉल्वेंट है। अब अगर मैं समझो NaCl सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो उसका NaCl का लैटिस एंथैल्पी लगेगा, उसका लैटिस एंथैल्पी है 790 किलो जूल्स पर मोल, माइनस हाइड्रेशन उसका एंथैल्पी है 786 किलो जूल्स पर मोल। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप 790 - 780, तो आपको मिलेगा 4 किलो जूल्स पर मोल, वो भी एंडोथर्मिक। इसका मतलब जब NaCl को पानी में डालोगे, 1 मोल ऑफ NaCl is added to water, it will absorb 4 kilojoules to form a complete solution to undergo ionization. Okay, और याद रखना, more hydration
better is the stability of ion. And always remember that hydration energy is inversely proportional to size of ion. जितना आयन छोटा होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा. अच्छा, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा सॉल्वेंट से सराउंड हो जाएगा और उसका मोबिलिटी इलेक्ट्रिकल फील्ड में कम हो जाता है. मोबिलिटी इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसका मोबिलिटी कम हो जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो जाता है. सो याद रखना कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mobility of ion in इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब अगर मैं बात करूं हाइड्रेशन एंथैल्पी की, तो पानी के अंदर Li plus will be more hydrated than Na plus will be more than K plus, because Li plus का साइज छोटा है तो वो ज्यादा हाइड्रेट होगा, Na plus जो छोटा है K plus से तो वो ज्यादा हाइड्रेट होगा K plus से. और अगर मैं इनकी बात करूं मोबिलिटी इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा K plus, देन Na plus, देन Li plus. याद रखने का. ओके, सो जितना ज्यादा साइज रहेगा उतना ज्यादा मोबिलिटी, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतना कम मोबिलिटी, सिंस दे आर सराउंडेड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. Okay, so that is basically enthalpy of solution, that is lattice enthalpy plus hydration. But याद रखना lattice enthalpy is not formation. lattice enthalpy में आप जो भी lattice बनाओगे that is for 1 mole and it is formed from an ions in the gaseous state. या तो फिर lattice को break करोगे तो it will give you an ion in gaseous state. तो या तो exo लिखोगे endo लिखोगे, बनाओगे तो exo है और break करोगे lattice तो endo है. ओके, और सोल्यूशन में हम लोग lattice को ब्रेक करते हैं, इसके लिए देखो मैंने यहाँ पर एंडो वैल्यू लिखा है प्लस. और जब हाइड्रेशन होगा सोल्यूशन में, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, दैट इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन. इफ इट इज आयनिक सॉलिड, आयन डाइपोल, तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, इसके लिए वो एक्सो हो जाती है क्योंकि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वहां पर. ओके, आई विल क्लियर दिस अप. अब मैं एक और एक सोल्यूशन में एक टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट टर्म इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. डाइल्यूशन मतलब आप सॉल्वेंट ऐड करते ही जा रहे हो सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन बना हुआ है उसमें आप बहुत सारा सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम ही होगा ऑब्वियसली. ठीक है, तो अब एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कैसा होगा, मतलब अगर मैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूट कर रहा हूं, डाइल्यूशन, so enthalpy of dilution is nothing but enthalpy change that occurs when a solution of one concentration, किसी एक concentration का solution आपने लिया है, is diluted to form solution of lower concentration. dilute करोगे तो concentration कम होगा, तो of another concentration. मतलब आप basically डाइल्यूशन करके कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हो. अगर डाइल्यूशन कम होगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा, अगर डाइल्यूशन ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन कम. ओके, अब फॉर एग्जांपल आई राइट डाउन योर एग्जांपल, डाइल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl, इसको डाइल्यूट करना है बाय 50 मोल्स वाटर. तो आपने 1 मोल HCl लिया है, समझो ये HCl है, इसका नेचुरल स्टेट गैस है 1 मोल, इसके अंदर आपने 50 मोल्स ऑफ वाटर डाल दिया है लिक्विड, सो इट विल फॉर्म HCl which is associated with 50 H2O. okay, 50 moles of H2O के साथ में ये अभी associated है, so I'm writing here HCl associated with 50 moles. okay, तो मोल लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, 50 moles of HCl. देखो ये से एसोसिएट हुआ. अब यहाँ पर जो हीट लिबरेट होगी, ऑब्वियसली डाइल्यूशन होगा तो हाइड्रेशन होगा, हीट लिबरेट होगी -73.26 किलो जूल्स पर मोल, इतनी हीट लिबरेट हो रही है. ठीक है, नाउ इसमें सेकेंड पॉइंट मैं ये ले रहा हूं कि डाइल्यूशन ऑफ 1 मोल HCl टू इंफिनिटी, बहुत एक्सेस पानी डाल दिया है, मतलब HCl जो इसका नेचुरल स्टेट गैस है उसको आपने एक्वस मीडिया में डाल के HCl से
एक्विस, कंप्लीट डाइल्यूट कर दिया बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर जो हीट लिबरेट हुई -75.14 किलो जूल्स, इतनी हीट लिबरेट हुई है। ओके, अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को, मतलब अगर मैं थर्ड में लिख दूं कि 2 - 1 कर दिया मैंने, ये दोनों को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे डेल्टा एच का वैल्यू क्या मिल जाएगा, डेल्टा एच विल बी -75.14 minus of -73.26, that is equal to how much, -1.88 किलो जूल्स। सो ये वैल्यू जो होगी ना -1.88 किलो जूल्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइल्यूशन ऑफ HCl, or I'll write here, dilution of HCl 50 molecules of water, moles of water to एक्विस इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब 50 मोल्स पानी डाला आपने HCl में तो एक सॉल्यूशन बना, उसके अंदर आपने एक्सेस ऑफ वाटर डाल दिया है। मतलब अच्छा, जब आपने 50 मोल्स ऑफ वाटर HCl 1 मोल और HCl गैस लिया, आपने 1 मोल ऑफ HCl गैस लिया, उसमें 50 मोल्स ऑफ वाटर डाल दिया। 50 मोल्स मतलब 50 इंटू 18 कर लो, उसका मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई, उसका मास मिल जाएगा। 1 मोल ऑफ HCl मतलब कितना हुआ, 36.5 ग्राम। तो 36.5 ग्राम गैस HCl को आपने 50 मोल्स वाटर, ठीक है, तो 36.5 ग्राम HCl लिया है, ठीक है, गैसियस स्टेट का जो है, उसको डिसॉल्व किया आपने किस में, 50 मोल्स ऑफ वाटर। 50 मोल्स मतलब 50 इंटू 18, दैट इज 900 ml ऑफ वाटर, समझो लिया है, डिसॉल्व किया है आपने, ठीक है। तो ये आपका एक सोल्यूशन बन जाएगा, दिस इज अ सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन में तुम क्या करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, क्या करते जा रहे हो, ऐड वाटर करते जा रहे हो, कितना, इनफाइनाइट। तो अब ये हो जाएगा HCl इन एक्वस स्टेट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस टाइम पे इसका जो हीट होगा सोल्यूशन का, और इतना पानी डालने के बाद जो हीट होगा, उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया कि सोल्यूशन का हीट हम लोगों ने डाइल्यूशन से सब्ट्रैक्ट किया, तो हमको ये हीट मिलेगा। दिस हीट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ डाइल्यूशन। तो हीट ऑफ डाइल्यूशन इज सोल्यूशन हीट जो आपने ली है, प्लस पानी डालने के बाद, एक्सेस सॉल्वेंट डालने के बाद कितनी हीट हुई, वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि व्हाट इज द हीट ऑफ डाइल्यूशन। सो हीट ऑफ डाइल्यूशन इज द फाइनल concentration after adding lot of water to the solution, okay, minus heat of solution. So this is the enthalpy of dilution. तो मैंने यहाँ पर अब पूरा enthalpy of physical change डिस्कस कर दिया है। Guys, take advantage of it, write down the points, important points, note down important points from it. Next lecture will be based on Hess law. Okay, till then, take care, bye.